Students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram, Department BBA. Now we are studying about the skewness. This is the overview of the skewness. In this video, we are studying about what is skewness, how many types of skewness distribution in graphical representation, and how can we calculate skewness coefficient in different by two ways. First of all, we start with the measures of skewness. The statistical technique to indicate the direction and extent of skewness is the distribution of numerical value in the data set, or we can say a frequency distribution of the set of the values that is not symmetrical is called asymmetrical or skewed. इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं डेटा का वो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, ये बताता है हमारा स्क्यूनेस. ठीक है, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, दिस ऑल आर कंसिडर्ड इन द skewness. Now skewness distribution, this is a very important thing that we are displayed on the screen. Skewness distribution, there are three type of distribution. First of all, symmetrical distribution, positive skewed distribution, and negative skewed distribution. In these three distribution, we also draw the graph. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास इन विच अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑल थ्रीज आर इक्वल. अगर हमारे किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, दीज थ्री वैल्यूज आर equal, so we can say it is a symmetrical distribution. And other is positive skewed distribution in which arithmetic mean is always more than median and mode. But in this sequence we are studying that arithmetic mean is the higher value. It means it is greater than median and mode, but the median is in between arithmetic mean and mode is the least value. And third one is negative skewed distribution. In negative skewed distribution, arithmetic mean is always smaller than mean and mode. In negative skewed distribution, as we see, mode is the highest as compared to median and arithmetic mean. If the mode is greater than median and arithmetic mean, so we can say this distribution is negative skewed distribution. Now you all are seeing that the skewed distribution curves. First curve is negatively skewed. Second, you have see that it is a normal, it means no skew. And third is positive skewed, right? अगर आप फर्स्ट ग्राफ में देखोगे तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मोड की वैल्यू है. कर्व इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मिडिल में आ गया आपका मीडियन एंड थर्ड वन इज योर मीन इज द लीस्ट वैल्यू एज कम्पेयर टू मीडियन एंड मोड. तो इट मीन इट इज़ अ नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. एंड इन बिटवीन जो आप बीच वाला देख रहे हैं इसमें मीन, मीडियन, मोड बोथ आर रिप्रेजेंट एट द टॉप. इट मीन्स ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, और वी कैन से इट इज़ अ नो स्क्यूड. इसके अंदर किसी भी तरह का स्क्यू नहीं है. इट मीन्स इट इज़ अ नो स्क्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्ड वन इज पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. इन पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज मिनिमम, यू कैन से कि मीन इज मैक्सिमम देन मीडियन देन मोड. नाउ नेक्स्ट, measure of skewness. How can we measure the skewness of the following distribution? हमें number of distributions given है. How can we measure the skewness for an asymmetrical distribution? The distance between median and mode may be used to measure the degree of skewness because mean is equal to mode in the symmetrical distribution. तो it means अगर हम absolute की बात करें, skew equals to mean minus mode, और mean is equal to Q3 plus Q1. Q3 और Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो इट मीन्स इट बिकम्स पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. और वी कैन से इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, इट मीन्स पॉजिटिव स्क्यूनेस, और इफ मोड इज ग्रेटर देन मीन, सो इट इज़ अ नेगेटिव स्क्यूनेस. ठीक है, इन बोथ द केसेस वी कैन कंसिडर मीन एंड मोड. बट इफ मीन इज इक्वल टू मोड, in the third case, if mean is equal to mode, so we can say it is symmetrical distribution and there is no skewness between the distribution. Next one is
वेरिएशन टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द वेरिएशन, वेयर एज स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस क्या बताता है हमें, अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कितना वेरिएशन हो रहा है, लेकिन स्क्यूनेस क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, मीन्स किस डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, मीन डायरेक्शन में, मीडियन डायरेक्शन में, या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस डायरेक्शन में वेरिएट हो रहा है। इट ऑल इज अबाउट इट, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू स्क्यूनेस। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक सीरीज measures of the variation have greater practical application than measures of skewness, right? Next आते हैं relative measure of skewness. There are the Karl Pearson coefficient of skewness. This is a formula of Karl Pearson's coefficient of skewness. See, mean minus mode upon standard deviation. If you want to calculate skewness according to the formula of Karl Pearson coefficient of skewness, now the formula is mean minus mode upon standard deviation. The value of skewness वेरीज बिटवीन +3 एंड -3। इसका मतलब स्क्यूनेस की वैल्यू +3 या -3 के बीच में आएगी फॉर द मोडेटिवली स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, बट मोडेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन +1 एंड -1। ठीक, इस फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसमें क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। उसके फॉर्मूले भी मैं आगे डिक्लेयर कर देता हूँ आपको। इन तीनों का फॉर्मूला निकालने के बाद आप इसमें कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में रखेंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी विल कैलकुलेट द स्क्यूनेस। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, दो फॉर्मूले हो रहे हैं हमारे पास, बाउले का है और Kelly coefficient of skewness. This another formulas by which we can measure the skewness, but the most popular way to find the skewness is Karl Pearson. एग्जाम में भी अगर इनकेस आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आप कार्ल पियर्सन मेथड से ही उसको कैलकुलेट करना। दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट प्रेफरेबल मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्यूनेस ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कितना देखा आपको, डेटा ऑफ रिजेक्टेड आइटम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस एज द फॉलोइज 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50 एंड 51 to 55। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, कैलकुलेट करना है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस +3 -3 के बीच में लाई करता है या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करता है। वी ऑल आर सीन इन दिस। नेक्स्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। इट मीन 21 और 25 के बीच की वैल्यू 23। आप इनको ऐड करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 21 + 25 46, 46 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 23। नेक्स्ट 26 to 30 इनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 56 इट मीन्स 28। नाउ बाय दिस वे वी कैन फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। Next frequency is also given in the question, 5, 15, 28, 42, 15, 12 and 3. Now we will find the sum of the frequency। हमने frequency का sum भी कर लिया which is represented by n। n equals to कितना हो गया आपके पास 120। Now third is we will calculate d। d होता है m minus a by h। अगर इसका आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम मिड वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। जैसे 38 इन्होंने ले रखी है, हमने 38 के आगे क्या लगा दिया 0। ऊपर के जितने भी हमारे वैल्यूज़ होंगे वो नेगेटिव इंटीजर होंगे और नीचे के जितने होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी विल ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू। आप फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बिना फॉर्मूले के मैंने आपको बता दिया क्या है, 0, -1 -2 और नीचे क्या आएगा 1 2 3। इन केस आप 38 को नहीं 43 को 0 भी कंसिडर करते, अगर आप 43 को 0 कंसिडर करते तो 0 को कंसिडर करने का फिर 0 आ जाता है 43 के लेवल पे और फिर -1 -2 -3 अपर लेवल पे और नीचे पे सिर्फ 1 2 रह जाता, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड इज वी विल कैलकुलेट डी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल डी इज -3, -3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 1 0 1 4 9। देन एफ डी, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ इंटू डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -3 इट इज 9 15, 15 × -2 कितना हो गया -30। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया और एफ और डी का हमने आंसर निकाल लिया, कितना आया -25। इट मीन्स सिग्मा एफ डी, एफ और डी को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना है -25। नेक्स्ट वन इज एफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जो वैल्यू थी 9 4 1 0 1 4 9, इसको हमने डी एफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, देन 15 4 60, 28 1 28 एंड कैलकुलेट द सम ऑफ दिस सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 223। नाउ हम क्या निकालेंगे, इसमें मीन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मीन का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, मीन इज इक्वल टू a + सिग्मा एफ डी अपॉन एच इंटू एच। ठीक,
उसके बाद दूसरा है हमारे पास मोड, ठीक, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन। ये दोनों निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच, एच रूट के बाहर है। अब आपने ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम ने हमने वो कैलकुलेट कर रखा है जिसके आगे हमने जीरो लगाया था। ये तीनों वैल्यू हमने जब कैलकुलेट कर ली हैं उसके बाद आगे देखिए आंसर लगाया हमने x इज इक्वल टू 36.96 इक्वल्स टू 6.736 और मोड हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 37.70। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाया हमने कितना आया 0.109। ठीक, ये इस तरह का हमने फॉर्मूला लगाया है कि हमारे पास क्या हो गया, आंसर हमारा नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आया तो हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड एंड हैंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजेक्ट ऑपरेटर इज बोलेस कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, बेसिकली दिस इज अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्यूनेस। द डेटा ऑफ द प्रॉफिट इन रुपीज़ लाख अर्न बाय द 60 कंपनीज इज एज फॉलोज। हमें प्रॉफिट का डेटा गिवन है यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज का, बिलो 10 5, 10 to 20 12 कंपनीज हैं, 12 to 30 20 कंपनीज हैं, 30 to 40 16 एंड 40 to 50 5, 50 एंड अबव इक्वल्स टू 2। नाउ सी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 12 हमने पढ़ ली थी, तो सम कितना फ्रीक्वेंसी का 60 और हमने निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है बेटा, फर्स्ट नंबर में 5 में हम पहले नंबर 5 सेम रहता है, 5 में 12 ऐड करो 17, 17 में 20 ऐड करेंगे 37, 37 में 16 ऐड करेंगे 53, 53 में हम 5 ऐड करेंगे 58 एंड 58 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 16। एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो होता है नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज ऑफ बोले स्क्यूनेस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q3 एंड Q1। Q1 क्या होता है, साइज ऑफ एन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q3 क्या होगा, साइज ऑफ 3n/4 ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर Q1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 15th ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास 60/4 करेंगे तो 15th ऑब्जर्वेशन होगी, और 3 × 60/4 करेंगे तो 45th ऑब्जर्वेशन हो गई। Q1 एंड Q3 का फॉर्मूला देख लो, L + n/4 - CF/F × H, and Q3 will be L + 3n/4 - CF/F × H. By using these formulas we will calculate the value of Q3 and Q1. Now Q3 - Q1 upon Q3 + Q1, this is a coefficient of क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकलता है हमारे पास Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। हमने क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है। मीडियन की बात करते हैं, मीडियन होता है n/2 टर्म, इसमें इट मीन टोटल टर्म थी 60, 60/2 का मतलब क्या है 38 टर्म। 38 टर्म किस पे बिलोंग करेगी, 20 क्लास इंटरवल 20 to 30 पे बिलोंग करेंगी हमारी। आगे देखिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H, और अगर हमें स्क्यूनेस निकालना है बाय यूजिंग द बोले कोफिशिएंट्स तो हमारा आंसर है Q3 + Q1 - ट्वाइस ऑफ मीडियन अपॉन Q3 - Q1। By using the formula of Q1, Q2 and Q3 we can calculate the value of skewness। हमारा आंसर क्या आएगा, द पॉजिटिव वैल्यू किसको शो करेगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस को, जो नेगेटिव वैल्यू की वो नेगेटिव स्क्यूनेस को। और हमारे पास जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो कितना आएगा 0.02। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट देखें, Q1 निकाला, Q3 निकाला, क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, Q3 में 0.313, मीडियन निकाला 26.5। After putting these value in the formula we can calculate the coefficient of skewness, that will be the answer 0.02। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है।